ফার্স্ট চ্যাপ্টার নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন আছে? কেউ কিছু বলছে না? না স্যার। ওকে, নেক্সট মুভ টু নেক্সট চ্যাপ্টার, levy and collection of tax. ओके, देखो कॉपी निकालो, कॉपी निकालो। कॉपी निकालो, कॉपी में लिखो जीएसटी इज चार्ज ऑन GST is charged on supply of GST is charged on supply of goods and services both. GST is charged on supply of goods and services both. Okay, and the supply সার্ভিসেস কি বললেন? goods and services both. BOTH both. Both goods and services both. Okay, goods and services both. Full stop. Supply include बोल के पहला पॉइंट लिखो, सप्लाई इंक्लूड, उसको हेडिंग करो करके पहला पॉइंट लिखो सेल। सप्लाई इंक्लूड में फर्स्ट पॉइंट इज सेल। सेल का अंदर लिखो, सेल का अंदर लिखो ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ट्रांसफर ऑफ गुड्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स with transfer of asset ownership, transfer of goods with transfer of ownership, transfer of goods with transfer of ownership. ओके, जस्ट नॉलेज क्लियर के लिए गुड्स के सेल क्या होगा, सप्लाई क्या होगा, ये हम बता रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग लिखो, सेल लिखा था नंबर 1, उसके बाद लिखो ट्रांसफर। ट्रांसफर में लिखो मूवमेंट ऑफ गुड्स without transfer of ownership, movement of goods without transfer of ownership, movement of goods without transfer of ownership. ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बार्टर सिस्टम में लिखो exchange of goods
in exchange of another goods, another type of goods. Exchange of goods in exchange of another types of goods. Exchange of goods. Exchange of goods in exchange of another types of goods. Another Types of goods. Okay. सर ये बार्टर विलेजेस में ज्यादा होता है ना? हाँ क्या बोला? विलेज में ये ज्यादा होता है ना कुछ सामान? हाँ विलेज अरे गांव अभी वगैरह नहीं में होता ज्यादा है अभी। पाया जाता है ना हाँ ये? अभी अभी नहीं होता है, अभी बहुत कम होता है। 200-400 साल पहले, 2-4 हजार साल पहले वो हुआ करते थे। ओके मैंने क्या लिखवा है देखो, एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ अनदर टाइप ऑफ गुड्स। एग्जांपल के लिखो, एग्जांपल में लिखो एक्सचेंज ऑफ राइस, exchange of rice in exchange of potato. Exchange of rice in exchange of potato. Okay. Next point, exchange. Next point, exchange. Exchange में लिखो transfer of goods, transfer of goods transfer of goods in exchange of same type of goods. Transfer of goods in exchange ना लिखे लिखो in alteration of, in alteration of same type of goods. हाँ देखिए थे। Transfer of goods in alteration of same type of goods. Example लिखो sir of alteration of same type of goods. scent ACNT Same. same तो कितना हुआ अभी इसका? तुम सो रहे थे क्या? हाँ अभी जस्ट अभी भी तो सो रहे हो। हाँ अभी उठे हैं जस्ट। ओके नेक्स्ट एग्जांपल लिखो exchange a new mobile, exchange a new mobile in exchange of old mobile. Exchange a new mobile in exchange of old mobile. नेक्स्ट पॉइंट है लाइसेंस। स्पेलिंग स्क्रीन में है, स्क्रीन से देख लो। लाइसेंस में लिखो अमाउंट पेड फॉर taking the permission, amount paid for taking the permission for use of
for use of intangible asset. For use of intangible asset. एग्जाम्पल में लिखो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन. Sir, use of Intangible asset. example. Online subscription. এই যে নেটফ্লিক্স, অ্যামাজন প্রাইম ভিডিও যেগুলো আমরা করছি, দিস ইজ Sir, paid for taking बोल तो. টেকিং. नेक्स्ट इज रेंटल. रेंटल में लिखो नहीं. रेंटल में लिखो अमाउंट पेड फॉर use of immovable property. Amount paid for use of immovable property. क्या बोला है सर? यूज ऑफ immovable I am उसके बाद लिख दो movable. Immovable property with regular payment. When you pay your credit card bills on credit, you earn credit points. Use them to claim With cashback. regular payment. I know this sounds ridiculous. With regular payment. नेक्स्ट देखो लीज. लीज में लिखो अमाउंट पेड फॉर use of immovable property with single payment. With single payment. When you pay your credit card bills on credit, you earn credit points. And the last one is Cashback. disposal. Now that's as rewarding. डिस्पोजल में लिखो ट्रांसफर ऑफ एसेट with transfer of ownership. Transfer of asset with transfer of ownership. Transfer of asset with transfer of ownership. মাসি চা খাবে? চা খাবে? চা চা
जिम लिखे के दाओ। ओके, जहां तक राइट अप हुआ एक बार रीड करो। सर एक बार सेल और ट्रांसफर का फिर से बोल दीजिए ना। सेल में देखो गुड्स लिखा हुआ है और सेल में देखो लिखा हुआ है Pay your credit ट्रांसफर ऑफ गुड्स विद ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। cashback and rewards. Now that's as rewarding. ट्रांसफर ऑफ गुड्स विद ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ सर गुड्स हमको विद बोल ट्रांसफर ऑफ दीजिए, आप तो ओनरशिप। सही लिखे हैं सर। हाँ, हेलो सर, मेरा सेल ट्रांसफर बैटर का नहीं हुआ है, तो तुम बता किसी से दीजिए, लिख लीजिए। किसी से लिख लेना, सबके पास लिखा हुआ है। ठीक। सेल में दोबारा बता रहा हूँ, साथ साथ लिख लो। सेल में क्या लिखवा था? सेल में लिखवाया था ट्रांसफर ऑफ गुड्स विद ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ गुड्स विद ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, सेल में ये लिखवाया था। और ट्रांसफर में क्या लिखवाया था? मूवमेंट ऑफ गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। मूवमेंट ऑफ गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफर का बोले हैं। हाँ, मूवमेंट ऑफ गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। रेंटल बोलते हैं। रेंटल माने भाड़ा। विदाउट क्या बोले हैं? विदाउट ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। बैटर का। बार्टर का मैंने लिखवाया था ट्रांसफर ऑफ गुड्स। Exchange of goods. एक्सचेंज ट्रांसफर एक ही बात होता है। उसको मैंने लिखवाया था, देखो एक्सचेंज ऑफ गुड्स और ट्रांसफर भी लिख सकते हो। इन एक्सचेंज ऑफ अनदर टाइप ऑफ गुड्स। इन एक्सचेंज ऑफ अनदर टाइप ऑफ गुड्स। হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ বলো, শুনতে পাচ্ছি। বলছি কি বলছেন স্যার, আমার ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিল। না কিছু বলিনি, আগে যা বলেছিলাম সেগুলোই ডিসকাস হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, সেলটা স্যার কি বলছে ব্যাপারটা? বিক্রি বিক্রি প্রোডাক্ট বিক্রি করলে মালিকানাও তো চলে যায় নাকি? যে কোনো প্রোডাক্ট। প্রোডাক্ট বিক্রি করলে মালিকানা যায় না, থাকে মালিকের। বুঝতে পারলাম। আর ডিসপোজালটা মানে যে কোনো ওটা অ্যাসেট। ল্যান্ড সেই- ফ্যান্ড। ওটা অ্যাসেট বলেছি। এবার যার তোর জন্য যেটা প্রোডাক্ট সেটা আরেকজনের জন্য অ্যাসেট হতেই পারে। সে তো বটেই। আর ট্রান্সফারটা যে কোনো ধরনের গুডস। হ্যাঁ, সবকিছু। ট্রান্সফারের একটা এক্সাম্পল পাওয়া যাবে? দেখ, তুমি তো আমার বাচ্চাদের মতো একটা জায়গা থেকে কি লিখেছি, পড়তো লাইনটা কি লিখেছি? মুভমেন্ট অফ গুডস উইদাউট ট্রান্সফার অফ ওনারশিপ। মালিক তার বাংলা মানেটা পড়। গুডস মুভ হবে কিন্তু ওনারশিপ ট্রান্সফার হবে না। তাহলে কি হয়? গুডস বলতে তুই তোর বন্ধুকে কোনো একটা জিনিস পাঠাচ্ছিস, এটাই তো হলো। আশিরাজ बोलो। हेलो आशीराज बोलो। हाँ सुन रहा है, बोलो बोलो। हाँ किसी का कोई क्वेश्चन पूछना है यहाँ से? और सर एक्सचेंज का बता दीजिए ना हमको। तुम लोग तो एक एक करते सब कुछ पूछना चालू कर दिया।
एक्सचेंज ऑफर क्या होता है? पुराना मोबाइल लो, पुराना मोबाइल दो, नया मोबाइल लेके जाओ, पुराना टीवी दो, नया टीवी लेके जाओ, होता है ना? लैंग्वेज को पढ़ो पहले, जो लैंग्वेज मैंने लिखा है उसको एक बार पढ़ के देखो उसमें क्या है। देखो, ट्रांसफर ऑफ गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ अनदर गुड्स, सेम टाइप लिखा हुआ है। तो टीवी का बदले टीवी, मोबाइल का बदले मोबाइल। और बार्टर में क्या हुआ था? एक प्रोडक्ट का बदले दूसरा प्रोडक्ट, आलू का बदले चावल, चावल का बदले फिश का बदले गेहूं, इस टाइप का। ओके, नेक्स्ट पेज। ये वाला पेज यहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ये वाला पेज हम लोग पढ़ेंगे बुक में। ये वाला पेज हम लोग पढ़ेंगे बुक में। अच्छा, एग्जाम्पल किसका ऊपर ले? गुस्सा नहीं होने का, पहले बताओ। मेरे पे ले लीजिए सर, हाँ, मेरे पे ले लीजिए। अच्छा निराज, पहले एग्जाम्पल सुनो, उसके बाद लॉजिक समझाएंगे। मान लो निराज गोवा गया घूमने। कहाँ गया? गोवा गया। किसके साथ गया, क्यों गया, वो किसी उसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो गोवा गया। अकेले अकेले चले गए। हाँ, गया গোয়া গয়া ঘুমনে। শিল্পা কেন গেছে এটা শুনিস না বাবা? ওকে একটু যেতে দে। না, একা চলে গেছে তাই বলছি। না, একা যায়নি, সাথে কেউ আছে। ওকে, तो गोवा गया घूमने। तो गोवा स्टेशन में उतारने के बाद और एयरपोर्ट में उतारने के बाद वो होटल के लिए गया। तो होटल में बोल रहा है सुबह का ब्रेकफास्ट जो है वो फ्री है। सुबह का ब्रेकफास्ट जो है वो फ्री है। प्रैक्टिकली वो फ्री होता है ना, होटल का जो रेंट है उसके साथ एडेड होता है। नेचुरली होटल का जो रेंट है उसके साथ वो एडेड होता है। कॉम्प्लीमेंट्री। होटल का जो रेंट है उसके साथ वो एडेड होता है ना। अभी नीरज बोल रहा है हम होटल का सुबह का खाना नहीं खाएंगे, जस्ट होटल का फेयर देंगे, अब दे दीजिए होटल मुझे। वो लोग देगा क्या? नहीं देगा। दूसरा एक सेकंड ऑप्शन बोल रहे हैं हम सब खाना खाएंगे लेकिन रहेंगे नहीं, रहने वाला जो है उसका काट दीजिए। वो लोग सेल करेगा तुम्हें होटल का खाना? नहीं करेगा। অল্পটা শোন তারপরে কোশ্চেন করবি। ओके, वो लोग नहीं करेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हो रहा है? एक के साथ, एक सप्लाई के साथ तुम्हें दूसरा सप्लाई लेना मैंडेटरी हो गया। एक सप्लाई के साथ तुम्हें दूसरा सप्लाई लेना मैंडेटरी हो गया। तुम नहीं भी ले सकते हो लेकिन तुम्हें पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो पेमेंट अगर करना ही है, हम सर्विस क्यों ना ले? तो नेचुरली कॉन्सेप्ट ये बता रहा है सर्विस which is connected with each other, जिसको हम लोग सेपरेटली परचेस सेल नहीं कर सकते। जिसको हम लोग सेपरेटली परचेस सेल नहीं कर सकते, मतलब कॉन्जंक्शन विथ ईच अदर। एक के साथ दूसरा तुम्हें लेना ही पड़ेगा, इट इज मैंडेटरी। एक के साथ दूसरा तुम्हें लेना ही पड़ेगा, दिस इज मैंडेटरी। ओके, जिसको हम लोग सेपरेटली परचेस सेल नहीं कर सकता है, जिसको हम लोग सेपरेटली परचेस सेल नहीं कर सकता है। तो इस टाइप ऑफ सप्लाई जो है इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्पोजिट सप्लाई। क्या बोलेंगे इसको? बोले सर कॉम्पोजिट सप्लाई। इस टाइप ऑफ सप्लाई को क्या बोलेंगे हम लोग? कॉम्पोजिट सप्लाई। तो अभी लैंग्वेज पढ़ो। लैंग्वेज में क्या बोल रहा है देखो, कॉम्पोजिट सप्लाई इज अ सप्लाई कॉन्सिस्टिंग टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई, टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई of goods and services or both or any combination which is bundle in nature। bundle in nature का मतलब क्या होता है? एक के साथ दूसरा तुम्हें लेना ही पड़ेगा। देखो एक जमाना था उसमें क्या था, नोकिया मोबाइल के साथ एयरटेल का सिम फ्री। तो क्या फ्री में देता था तुम्हें? प्राइस तो तुमसे ले ही लेता था। तो एक के साथ दूसरा तुम्हें लेना ही पड़ेगा, इट इज मैंडेटरी टू टेक सेकेंड वन। तो बोल रहा है देखो दो आइटम है निराश के लिए। एक क्या था? नाइट स्टे, जिसका जीएसटी रेट मान लो 12%। दूसरा क्या था? दूसरा है मेरा
फूड जिसका जीएसटी रेट है 0, दूसरा है फूड जिसका जीएसटी रेट है 0, मान लो। तो नीरज को होटल बिल तो एक ही बिल बनाना है नीरज के ऊपर, जिसके साथ फूड एंड नाइट से दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है। बोले हाँ, दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है, दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है और बिल एक ही बना। तो सिंगल बिल में जीएसटी रेट भी एक ही चार्ज होगा। बोले कौन सा चार्ज होगा? यहाँ कंपोजिट सप्लाई में ये बोला जा रहा है 2 और मोर जो सर्विस है वहां पे, गुड्स एंड सर्विस है, उसका अंदर मेन ऑब्जेक्टिव कौन सा वाला है? उसका अंदर मेन ऑब्जेक्टिव कौन सा वाला है? नाइट स्टे और खाना। तो नीरज के लिए वो क्या था? नाइट स्टे था। तो नाइट स्टे का जीएसटी जो है, जी रेट ऑफ जीएसटी जो है वो इंटायर बिल पे चार्ज होगा। नाइट स्टे का जो जीएसटी रेट है वो इंटायर बिल पे चार्ज होगा। तो अल्टीमेट नीरज का नुकसान हो गया, क्योंकि 0% जीएसटी रेट जिसका था खाना, उसके ऊपर भी उसको 12% देना पड़ा। तो कंपोजिट सप्लाई में क्या हुआ? कंपोजिट सप्लाई में बोल रहा है कंजंक्शन विद ईच अदर, मतलब एक के साथ दूसरा सर्विस तुम्हें लेना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है जिसको हम छोड़ सकते हैं, लेना ही पड़ेगा एक के साथ दूसरा सर्विस। ओके, जिसको हम लोग सेपरेटली परचेज सेल नहीं कर सकता है। और जीएसटी रेट क्या होगा? बोला दोनों का अंदर जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसका जो रेट है पूरा इंटायर बिल पे वही रेट एप्लीकेबल होगा, पूरा इंटायर बिल पे वही रेट एप्लीकेबल होगा। तो सर बाइक के साथ तेल, बाइक के साथ तेल फ्री थोड़ी देता है। तो लेना ही पड़ता है ना? नहीं, वो एक साथ जो लेना ही पड़ेगा परचेज के टाइम। अच्छा मतलब अच्छा, जो दोबारा एक ज्वाइन चीज करो, free टाइम में है। खत्म हो रहा है, दोबारा ज्वाइन करो, टाइम खत्म हो रहा है।